परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध, उनके दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को। परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से और परम पूज्य 13वें छोना रिम्पोचे के प्रयासों से शुरू हुए कार्यक्रम शराब सैंगपो यानी नोबल विजडम में हर रोज आप पाते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी अमूल्य जानकारियां। पेश है एक नया और ताजा एपिसोड। कार्यक्रम शराब संगपो में हमने आपको बताया कि इग्नोरेंस यानी जानकारी के अभाव में शरीर को स्वस्थ रखने वाली 3 ऊर्जा शक्तियों यानी लुंग, कृपा और भेगम का जब संतुलन बिगड़ता है तो उसी से पैदा होती हैं बीमारियां। अब आप ये भी जान लीजिए कि सोआ रिक्पा के जानकारों के मुताबिक टीबी बीमारी होने की यही वजहें हैं। Tuberculosis has been described as Chongchen Seche and pulmonary tuberculosis has been described as Lochong Seche in Sowa Rigpa. The Sowa Rigpa main classic text, the Fourth Tantra, expounded about this communicable disease as well as its treatment. It is explained in the 11th chapter of Oral Instruction Tantra, which is third among the 4 Tantra. हमारे सोआ रिक्पा के एक्सपर्ट से आपने जान लिया कि लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी से आपको टीबी की बीमारी हो सकती है। अब जरा इन वजहों को और विस्तार से समझिए। The causes of tuberculosis are unwholesome diet and improper lifestyle. Unwholesome diet such as excessive intake of spicy, fermented and innutritious food, addicted drinks, smoked or roasted foods, stale breads, dry meats, old butter, unripe fruits, and drinking a lot of cold water, coffee, alcohol, etc. टीबी बीमारी की वजह आपने जान ली। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे टीबी बीमारी की पहचान के तरीके। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Tashtele Namaste. 25th of February 2011, Friday, and 23rd lunar day of 12th lunar month of Iron Tiger year. The elemental combination is Earth-Fire, which is an inauspicious combination and brings burning and lead to suffering. Activities related to defeating enemies and undertaking violent activities are more effective. But from 1:30 p.m. onwards, it is Earth and Earth, which is a good elemental combination. It has rewarding energy that fulfills the desires of an individual and favors the accomplishment of tasks. It is good for engagement and marriage ceremonies, especially favorable for the people of bird, monkey, and sheep. And most of the religious activity can be favorable. Doing offering to God, marriage ceremony, dealing business matters, taking of journey for the business purpose, laying foundation for the house, and good time to give feasting to others. But since it is
Phui Namgo therefore award a new child's birthday celebration and taking baby out of home for the first time, as well as this day is not favorable for the people of tiger and rabbit years. Pumdong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south direction. 26th of February 2011 Saturday and 24th lunar day of 12th lunar month of Iron Tagayi. The elemental combination is Earth and Earth, which is a good elemental combination. It has rewarding energy that fulfills the desires of an individual and favors the accomplishment of tasks. It is good for engagement in marriage ceremony and especially favorable for people of ox. And works like construction of house and renovation, road and drainage construction, and appeasing wealth god, and plantation of flowers and trees, starting of new home and giving names to pet animals are very good on this day. Particularly people of pig and mouse may experience less luck. Moreover, Pumdong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south direction. 27th of February 2011 Sunday and 25th lunar day of 12th lunar month of Iron Tagayi. The elemental combination is earth fire, which is an inauspicious combination and brings burning and lead to suffering. Activities related to defeating enemies and undertaking violent activities are more effective. From 12 p.m. onwards, the elemental combination changes to fire water, which is also a bad one and brings death. Unfavorable for peaceful undertakings, but negative activities such as killings, concocting poisons, and cursing will be more forceful. Moreover, since it is Nyenganambo, therefore it is inauspicious for parties among friends and relatives or parties for seeking new relationship. BT appears from 3 a.m. until 4:30 p.m. from west to south direction, so avoid undergoing tarsic therapies like bloodletting and moxibustion. In addition, the Lord of Earth or Sadak Simbum moves from south to north direction during midnight to sunrise. Thus, undertaking journeying, starting important work from south to north direction during that time is not good. Pumdong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south direction. Thanks for watching and see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। इनके दिखाए रास्तों को अपनाकर हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनजान हैं। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक न एक सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु हर रोज धर्म ज्ञान देते हैं। तो सुनिए आज का अमूल्य धर्म ज्ञान। जब धर्म के जब सभा और जिसमें ब्लेसिंग के बात करते हैं, यानी कि आपका क्या कहें, आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद और प्रवचन और भाषण और इसमें अंतर होता है। अब जैसे कि अधिवेशन का समय में जो वक्ताओं ने कहा जाता है उसको हम कहते हैं भाषण, और मैं भी कल कुछ भाषण आपके सामने में दे करके गए थे। अब आज के बाद जो है उसको भाषण नहीं कहलाएंगे, इसको कहलाएंगे प्रवचन, और जो लोग बैठे हैं उनको भी कहलाएंगे भक्त, भक्तजन। भक्ति भावपूर्वक आना पड़ता है। तो जब अंग्रेजी में ब्लेसिंग कहा जाता है या हमारे हिंदी में
आपको आशीर्वाद के बात कहते हैं, तो आशीर्वाद कैसे प्राप्ति होगा, तो उसमें भक्त होना आवश्यक हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म के कार्य में थोड़ा भिन्नता इसलिए होते हैं। तो अब आज अंतिम चरण में जो आशीर्वाद के बात है, तो हम सबसे पहले तो धर्म और अधर्म को जानना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ही पता ही नहीं है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो फिर आप धर्म के रास्ते पर कैसे चल पड़ेंगे। तो धर्म और अधर्म की बात जब करते हैं, तो प्रथम आपको कुछ संक्षेप में धर्म के विषय में जानना आवश्यक होगा। हमारे समाज में अधिकतर लोग क्या समझ करके बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे मोनपा भाइयों में भी इस तरह का गांव-गांव में सोच है। उसी तरह से केवल आपके यहाँ में नहीं, बल्कि पूरे हमारे हिमालय क्षेत्र में गांव-गांव में जहाँ हमारे बौद्ध अनुयायी के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को धर्म के ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्ति नहीं होने के कारण हमारे सोच में पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो कारण जैसे कि हम घर में छेषम बनाते हैं, तो हम समझने लगते हैं शायद धर्म वहीं कहीं है। जब हम सुबह उठ करके छेषम के भीतर जाते हैं और वहाँ प्रणाम करते हैं और छेमे जलाते हैं, उस समय सोचते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ। और जैसे छेषम से बाहर निकलने का साथ साथ जैसे सिटिंग रूम या बेडरूम में आ जाते हैं, तो धर्म से थोड़ा बाहर आ गया हो, ऐसा अपने को महसूस होता है। क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? ये बात सच्चाई नहीं है? ये हम लोग समझते हैं। तो ये गलत है। और हम समझते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा हम छेषम में रख दिया, और धर्म ग्रंथ जो कि कंजुर या तेंजुर जैसे कि दोमंग वगैरह का एक पोथी हमने ले करके उसको छेषम में रख दिया। हम समझते हैं छः कहाँ है, छः छेषम में रखा है बोलता है। और हम इसीलिए अब हमें जानना होगा धर्म छः जो कहते हैं हमारे छः, वो धर्म जो है किसको कहते हैं। अब धर्म, ऐसा धर्म शब्द में अगर हम कहा जाए, इसके मतलब बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। आपको शायद पता होगा कुल धर्म होता है, जगत धर्म होता है, मानव धर्म होता है। और जैसे कि जगत धर्म या मानव धर्म, जैसे मानव जाति में हम जन्म लेने के बाद मुख्य रूप से जो हमें पालन करना होता है उसको कहते हैं मानव धर्म। लोग कहते हैं ना, तुम तो मानव धर्म तक भी पालन नहीं करते हैं। तो मानव धर्म मतलब क्या होना चाहिए? जैसे कि आप मानव जाति में है, लेकिन आजकल मानव जाति पे थोड़ा बिगाड़ रहे हैं। हमारे रीति रिवाज में कहा करते थे, तुम मानव जाति हो, तुम इंसान हो, तुम बैठ करके खाना खाओ। शायद आप लोग भी बोलते होंगे ना, लेकिन जब खड़े होकर के खाना खाते हैं उसको कहते हैं हम लोग जानवर। लेकिन आज हम अपने मानव धर्म को भूल करके अब खाना खाते हैं हम 5 स्टार होटल में जा करके। जब शादियां होते हैं, जहाँ पे आपको पार्टियां होते हैं, तो खड़े खड़े खाना खाते हैं। तो खड़े खड़े जो घास खाने वाले, खाना खाने वाले जो होते हैं उसको जानवर कहलाते हैं असली में। लेकिन आज हम अपने मानव धर्म को भी अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं। और उसी तरह से मानव धर्म की जब बात करते हैं, उसके आवश्यकता कहाँ तक रहते हैं? उसके आवश्यकता एक लाइफ तक, एक जिंदगी। जब तक आप मानव जाति में पैदा हुआ है और तुम्हारे मृत्यु आने तक ही तुम मानव जाति में रहेंगे। और जिस दिन तुम मृत्यु के मुंह में चला जाएंगे, मौत के मुंह में,
उस दिन से फिर तुम्हारे आने वाला जन्म कहाँ जन्म लेगा तुम्हें पता नहीं है। तो जिस दिन मौत के मुंह में हम चला गया, उसी दिन से हमारा मानव धर्म का कोई काम नहीं है, उसके संबंध खत्म हो चुका है। उसी तरह से जैसे कि कुल धर्म होता है, जैसे कुल धर्म को वे कहते हैं ना, मैं तो पंडित हूँ, मेरे कुल धर्म को मैं पालन करना है, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं तो दूसरों के घर में जा कर के खाना बना नहीं खाते, केवल मेरे पत्नी या अपने घर का ही खाना खाता हूँ, ये मेरा धर्म है। ऐसा के अपने कुल धर्म होता है। उसी तरह से राज खानदान, राजा लोग, राजन जो राजकुमार होता है, तो उनका भी धर्म होता है। लेकिन ये सारा धर्म जिस दिन तुम कुल बदलोगे, उसी दिन वो धर्म तुम्हारे रिलेवेंट नहीं रह जाते हैं। अगर एक पंडित अगर या कोई योजन से विवाह कर ले, तो इसके बाद तो उनका धर्म का कोई काम नहीं है, फिर वो धर्म बदलना पड़ेगा, बदल करके फिर वो योजन का धर्म में आना पड़ेगा। तो इसीलिए कुल धर्म, जातीय धर्म, मानव धर्म, ये जितने भी बात कहा जाए वो एक जीवन तक ही सीमित रहते हैं, इसके पश्चात इसका कोई आवश्यकता नहीं होते। अब जो हम बात करने वाले 6 जिसको कहते हैं, वो 6 ये धर्म नहीं है, ये सबको नहीं बोलते हैं। जो हम 6 बोलने वाला धर्म जो है, वो पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ एक धर्म है, अपने जीवन को बदलने का एक प्रक्रिया है, अपने सोच को बदलने का एक प्रक्रिया है, जिसको 6 बोलते हैं। तो वो 6 का धर्म जो कहाँ से आरंभ होगा, उस चीज को आपने को जानना आवश्यकता होगा। अब वो 6 कहाँ से आरंभ होगा, आपके दूरदृष्टि जब होगा, होने लगेगा, तब वहां से 6 आरंभ होगा। ये जन्म तक सीमित नहीं रख करके आने वाले जो हजारों जन्म के लिए आप सोचना शुरू करते हैं, और आने वाले हजारों जन्म के लिए तुम इस जन्म का सुख और सुविधा को त्याग करना शुरू कर दें। तो ये 2 भावना जब आपके मन में आपने निर्माण करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, तब से आपका धर्म या 6 आरंभ होता है। और वो 6 वहां देखने का नहीं है, 6 बोल के 6 शम में दिखाने का चीज नहीं है, 6 बोल के वो ग्रंथ को दिखाने का चीज नहीं है। वो ग्रंथ धर्म के ग्रंथ है, वो पढ़ करके धर्म अपने में होना है, 6 अपने में होना है, अपना जहां पहुंचेगा वहां धर्म होना चाहिए। तो इसलिए धर्म और अधर्म कहां से आपको तय करते हैं, उस पर एक बात मैं कहूंगा, आपके सोच इस जन्म को छोड़ करके आने वाले हजारों जन्म तक सोचना शुरू कर दें, और उसके कल्याण के लिए इस जन्म के जो फायदा है या सुख और जो भी आपके क्या कहते हैं सुविधाएं हैं, उसको त्याग सकने वाला आप जब से आप शक्ति प्राप्त होगा, तब से तुम धर्म के मार्ग पे आरंभ होता है, चल सकता है, चलने का आरंभ किया है।